Jai Hind, Vande Mataram, friends. Now, this is our last chapter in science, and that is the heredity and evolution, chapter number 9. Okay, and I can say one thing here that without completing this chapter, reproduction is incomplete. And this is the apex of the biology because this is the chapter which is associated with heredity science. जीवन की जटिलताओं को स्टडी करने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दिस ब्रांच हैज प्रोवाइडेड, ये ब्रांच प्रोवाइड करती है. सो इन दैट कंटेस्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. सो वी नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म reproduces either sexually or asexually. Okay, and due to that capacity, every organism reproduces the new generation of offspring that resemble the parental generation. Means they get certain quality, inherited quality from their parents. And one interesting thing is there, they have their own certain quality and they get certain quality from the parents, and due to that reason certain kind of changes which we call the variance, vividhata, we see the parent and the offspring, दोनों में हमको जो है कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं. दोनों बिल्कुल कॉपी टू कॉपी तो नहीं होते हैं, कार्बन कॉपी तो नहीं होते हैं. कुछ वेरिएशंस, कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. Though the offspring of the species may resemble very closely to their parent, they never exactly, मैंने बोला ना अभी, अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं लेकिन कार्बन कॉपी नहीं होते. In other words, we can say that each species has individuality. Each species is recognizable by certain specific characters. By the process of gradual and continuous changes, living organisms have evolved to exhibit a wide diversity. एक कालक्रम में बहुत सारा परिवर्तन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें देखने को मिला. पीढ़ी दर पीढ़ी वो बदलाव होते चले गए और उन बदलावों को होने में, एक्सेप्ट करने में हजारों हजार साल लग गए. आ रहा होगा मैं जो आप लोगों को समझ रहा हूं. सो हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट द हेरिडिटी, व्हाट इज द वेरिएशन. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, उत्क्रांति के सबूत. नाउ योर चैप्टर इज, योर हेडिंग इज ऑल्सो देयर, द इवोल्यूशन, उत्क्रांति. Okay, so what is the meaning of exactly evolution? That also we will try to understand further. First heading is that the accumulation of variation during reproduction. Reproduction के दौरान माता पिता और उनकी संतानों में थोड़ी बहुत विविधता क्यों देखने को मिलती है? What are the reason behind that? Let's see. The occurrence of different among the individual of the same species is known as variation. Very little variation can be seen in organisms which are reproduced
वेजिटेटिवली और असेक्सुअली। मतलब जो प्लांट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता नहीं है। लेकिन एज यू मूव टूवर्ड द हायर एनिमल, जब आप हायर एनिमल की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको जो है थोड़ा बहुत भैया 1920 देखने को मिलता है। सॉरी। Very little variation can be seen in the organism which are reproduced vegetatively or asexually, while distinct variation are observed in the organism which reproduce sexually. Even you can feel, हमारे एक ही माता पिता से पैदा हुए दो भाई बहन या दो भाई, उन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा समानताएं देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ ना कुछ दोनों एक दूसरे से अलग दिखेंगे। हाँ, आप ये चीज़ जो है जो ट्विन्स होते हैं उनके मामले में नहीं बोल सकते हो, वहाँ पे जो है ये एक्सेप्शनल केस है वहाँ पर। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ ही जाता है, बराबर है। So we know that the sexual reproductions involve the process of meiosis of gamete formation. Meiosis means the cell division. During the meiosis, crossing over take place between the gene and hence new combination are formed, which ultimately result the reproducing variations among the characteristics of individual of species. However, all they find themselves, depending on the nature of variation, different individual would have different kinds of advantages, selection of variant by environmental factor, some of the basis of evolutionary process. Now next is the most important question, the heredity. आप लोगों ने एसएस में भी हेरिडिटी पढ़ा है, हमको हमारे एंसेस्टर से जो मिला है, बराबर है। तो उसको आप जो है कल्चरल हेरिटेज बोल रहे थे, लेकिन एक हेरिटेज वो है जो आपको इनहेरिटेंट, बराबर है, विरासत में मिलता है, और उसमें जो है आपके माता पिता के जो इंटरनल क्वालिटीज होती हैं, जो गुण होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग में जो है देखने को मिलते हैं। और ये अपने आप में एक अजूबा है, बराबर है। इसलिए हम लोग, मैंने पहले भी ये बताया जब व्हेन वी वर डूइंग द रिप्रोडक्शन चैप्टर, सो आई एक्सप्लेन यू एट दैट टाइम कि भाई काऊ से काफ ही पैदा होगा और डॉग से जो है पपी ही पैदा होगा, बराबर है। अपने जैसे प्राणी को ही उस कुल का प्राणी जन्म देगा। तो स्टोरीज में भले ऐसा आ जाता हो कि भाई क्या कहते हैं, किसी गाय ने जो है बालक को जन्म दिया, कहते दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बराबर है। वो स्टोरी वाइज हो सकता है, बराबर है, लेकिन रियलिटी में उसका कोई स्कोप नहीं है बच्चों। उसका रीजन क्या है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हेरिडिटी मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। कुछ पैतृक गुण जो है, बराबर है, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, मूवमेंट होना, दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटी। For example, egglets by a sparrow hatch into sparrow only. The dog gives birth to puppy only. This is the essence of heredity. Hereditarily information is present in fertilizer, egg or zygote. The zygote developed into a organism of a particular type only. यानी ह्यूमन बीइंग का जो ज़िगोट जो होगा, बराबर है,
तो उसमें से जो है इंसान ही पैदा होगा, कोई और पैदा नहीं होगा। The heredity can be defined as what is heredity exactly? The transmission of character of parent to its offspring. माता पिता के लक्षणों का उसकी आने वाली संतति में, बराबर है, जो रूप देखने को मिलता है, बराबर है, that tendency is called the heredity. So every individual is resembled to their parents. Heredity and variations are important aspect of science, which are studied under the genetic, and that's why it is a genetic science also called heredity science or genetic science. So genetic is also known as the science of heredity and variations. ठीक है. Now, inherited characters. What is the meaning of that? Organisms follow the character of their own species. We can say that it is their inheritance. It is through inheritance that each species maintain the structure of character generation after generation. एक जैसे लक्षण generation to generation maintain रखना. At the same time, it also equally true that offspring are not exact copy of their parent. मूल चीजों को तो अपने अंदर समाये रखते हैं, लेकिन अपनी क्वालिटी भी उसमें ऐड करते चले जाते हैं. This aspect of different form of parents are called the variation. Human population shows great deal of variation. In the following part, we will study the characters of transmitted generation to generation. अब ये जो characteristics transfer होते हैं, इसके पीछे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हर एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक पजल रहा. और ग्रेगर जॉन मेंडल से लेकर, बराबर है, वॉटसन एंड क्रीक तक बच्चों, हर किसी ने जो है इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया. चाहे फिर वो चार्ल्स डार्विन रहे हो जिन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, और हर कोई अपने अपने तरीके से खास करके जेनेटिक साइंस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाता रहा कि भाई किस तरह से फर्दर जनरेशन में ये क्वालिटी ट्रांसमिट होती है. और इसकी शुरुआत करने वाला जो पर्सन था, हिज नेम वाज ग्रेगर जॉन मेंडल. बेसिकली तो वो एक चर्च में फादर थे, प्रिस्ट थे, मॉन्क थे, लेकिन उन्होंने जो है अपने जिस चर्च पे वो प्रेयर के लिए जाते थे, उनके आजू बाजू के गार्डन में उन्होंने जो है, जो हमारे घर में मिलने वाला जिसको हम लोग मटर बोलते हैं, वटाणा बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. और उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक अलग कंक्लूजन जो है निकाल कर दिया. अभी वो कंक्लूजन अभी नहीं बताऊंगा, वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे. ओके, तो कैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने हेरिडिटी के बेसिक फंक्शन को समझाने की कोशिश की, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय, सी यू.